예, 예, 됐습니다. All right. Yeah. Thank you. Mm. Okay. Mm. Today's title is How Can We Meet God? आज का जो विषय है वो ये है कि हम कैसे परमेश्वर से मिल सकते हैं। Yeah. We are God's children, so always we can meet God. हाँ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम हर समय उससे मिल सकते हैं। Yeah. Let us enjoy the meeting of God. और परमेश्वर के चरणों में बैठना ही बड़ी आनंद की बात है। Yeah. A famous person once said that if we were to take the Bible passages, make pastors out of them, किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा है कि यदि आप एक बाइबल पद्यांश ले लें और उससे अ, संदेश की तैयारी करें and uh, plaster them on the walls of London, और उसके वचन के आधार पर आप उन्हें आशीष दें an amazing thing would happen. और फिर आश्चर्यचकित कार्य होंगे। To speak against this statement, surely, even if you were to place the word of God on the walls of London, nothing would happen. लेकिन ये एक लंदन करके एक व्यक्ति थे, शायद उन्होंने कहा है ये बात, लेकिन उसके आधार पर ये नहीं हो पाया। Of course, if God had intended to work that way, it is possible. अगर हाँ, परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार से कार्य हो तो ये संभव है। But even if we were to use the Holy Scriptures, we would not be able to save souls that way. लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से वो व्यक्ति खुद अपनी आत्मा को नहीं बचा पाया। At the same time, you cannot save souls with inspirational words or various sermon messages. इसी प्रकार से प्रेरणादायक शब्दों को लेकर हम कई बार Again, at the same time, we cannot save souls with inspirational words or various sermon messages. और इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि हम अ, प्रेरणादायक संदेशों को अपने जीवन में कई बार ले लेते हैं। Hmm? Yeah, the person for this, the reason for this is because unbelievers are those who belong to the darkness. ये बात इसलिए है कि कुछ लोग जो हैं अंधकार में रह रहे हैं। Yeah. What the people who do not believe in Jesus Christ need is for their spiritual eyes to open. Uh, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, हमारी कामना ये रहती है कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं so they can live their lives following after the word of God. ताकि वो परमेश्वर के वचन का अनुसरण करके अपने जीवन को अच्छे से बिता सकें। Unless the Holy Spirit works, the light of Jesus Christ cannot shine. जब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करता, तब तक यीशु मसीह की ज्योति काम नहीं कर पाएगी। We must relay the accurate facts regarding the light and truth. इसीलिए सच्चाई और जीवन के बारे में हमें सही तथ्यों को बताना है। Yeah. And we must pray for the Holy Spirit to work to illuminate the thoughts and hearts of these people. हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इनकी मन की आंखों को खोले ताकि ये सच्चाई को जान सके। Without the powerful working of the Holy Spirit, we cannot break through this situation of हम our हम reality. परमेश्वर के सामर्थ भरी आत्मा को जानते हैं जो अद्भुत कार्य करता है और हम इसको कर सकते हैं। Yeah, so we must depend on
the works of the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के कार्यों पर निर्भर होना है। If we could just meet with God, we would be all right in the face of tribulations, persecution, or great problems. अगर यही बातें सामान्य तौर से होती, तो हम परमेश्वर से मिल सकते हैं अपने जीवन के मुश्किल में, सताव में, संकट में, और जीवन चलता रहेगा। For example, though Joseph faced a great hardship because God was with him, it did not become a problem. देखिए, उदाहरण के लिए हम यूसुफ के जीवन को ले लेते हैं। यूसुफ के साथ परमेश्वर था। उसके जीवन में समस्या आई, लेकिन वो उसके लिए समस्या नहीं बनी। And the evangelist Paul faced great tribulation and persecution as an apostle, but because God was with him, he was able to bear and withstand it. पौल एक सुसमाचार प्रचारक के होने के नाते उसके जीवन में भी बहुत समस्या आई, दिक्कतें आई, लेकिन वो उन सब का सामना कर पाया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So he confessed, I can do everything through him. Uh, uh, I can do everything uh, थ्रू हिम हू through the स्ट्रेंथन। power of God. Yeah. तो वो कहता है कि मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। Yeah, God is strengthening me. परमेश्वर मुझे बल दे रहा है। Yeah, the people who have met God, those whom God is with, will triumph over all tribulations, persecutions, and problems. जो लोग परमेश्वर के संग रहते हैं या जिनके संग परमेश्वर रहता है, उनके जीवन में मुश्किलें आएंगी, उतार चढ़ाव रहेगा, और दिक्कतें रहेंगी, लेकिन वो इन सब समस्याओं पर जय प्राप्त करें। God has opened the way with three methods for all of us who are तीन तरीकों living से in the end times. तीन तरीकों से परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला है। So then, how can we meet with God? सो अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे परमेश्वर से मिल सकते हैं। First, we can meet God through Jesus Christ. हालेलुया। पहली बात यह है कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मिल सकते हैं। आमीन। Mankind can only become children of God through Jesus Christ. मनुष्य जाति परमेश्वर की संतान केवल यीशु मसीह के द्वारा ही बन सकती है। Through Jesus Christ, our faith has been changed from that of a child of Satan to that of a child of God. परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से अ, अ, मृत्यु की संतान से हम बचकर परमेश्वर की संतान बन गए हैं। We can live our lives enjoying God हम अपना जीवन मसीह में एक आनंददायक जीवन जी सकते हैं and receiving blessings until the day of our death. और मृत्यु के दिन तक उससे आशीष को प्राप्त करते रहेंगे। God changed the destiny, God changed the destiny of Peter, who was a fisherman. परमेश्वर ने पतरस की मंजिल को बदल दिया, जो एक मछुआरा था, And he led him to become an evangelist who saved people. और उसने उसको एक सुसमाचार प्रचारक बना दिया जो लोगों को बचा सका। He also changed the destiny of Paul, who was skilled in the law and yet was suffering from spiritual problems. उसने पौलुस की भी मंजिल को बदल दिया, जो एक व्यवस्था का बड़ा ही जानने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसके मंजिल को भी बदल डाला। God sent Jesus Christ in order to change our faith too. परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हमारा भी जीवन बदल सके।
Jesus, who came as the Christ, broke down the authority of Satan that seized us. यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने शैतान के अधिकार को तोड़ दिया जिसमें हम फंसे हुए थे। He also solved the problem of sin and curses that we could not solve. उसने पाप और श्राप की समस्याओं का भी समाधान कर दिया जिसका समाधान हम नहीं कर सकते थे। Though we cannot come out from darkness, curses, sin, fate, hell, and the authority of Satan by any other name, in the name of Jesus Christ, our problems have been solved. हम अपने अपने परिश्रम से शैतान, श्राप और पाप और भाग्य और इन तमाम बातों से बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन मसीह के द्वारा ये तमाम चीज़ों का समाधान हो चुका है। Acts chapter 4, verse 12 says, there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. प्रेरितों का काम 4 का 12 में लिखा है कि धरती के ऊपर और आसमान के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। God only gave us Jesus Christ. परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। Only Jesus Christ is the way, the truth, and the life. मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु ही है। No one comes to the Father except through Jesus. यीशु के बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। And Romans chapter 8, verse 2 says, the law of the Spirit of life that is in Christ Jesus set us free from the law of sin and death. और रोमियो की किताब उसका 8 का 2 कहता है कि अ, व्यवस्था की आत्मा ने हमें आजाद कर दिया है। And John 14, verse 26 says, the Counselor, the Holy Spirit, came in the name of Jesus. और यूहन्ना 14 का 27 कहता है कि वो सहायक, वो मददगार यीशु के नाम में आएगा। John chapter 2, verse 20 through First John chapter 2, verse 27 says, पहला यूहन्ना 2 का 27 में लिखा है, God anoints with the Holy Spirit, the filling of the Holy Spirit, the people who believe in Jesus, and He परमेश्वर teaches all things through the Holy Spirit. परमेश्वर उन लोगों का अभिषेक करता है जो उस पर विश्वास करते हैं और फिर वो पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सिखाता है। आमीन। And First John 3, verse 8, the reason why the Son of God, Jesus, came to the earth was to destroy the works of the devil. जब हम पहला यूहन्ना 3 का 8 पढ़ते हैं तो ये बताया गया है कि क्यों परमेश्वर का पुत्र यीशु धरती पर आया और ऐसा वहां लिखा गया है वो इसलिए आया ताकि शैतान के कामों को नाश कर सके। The devil plunges people into sin and leads them towards destruction. शैतान लोगों की अगुवाई उनको भरमा कर उनको नाश होने की ओर करता है। However, Jesus came to destroy the work of the devil and to save us from sin and death. यीशु मसीह धरती पर इसलिए आया ताकि वो शैतान, पाप और श्राप के कार्यों को ध्वस्त कर सके। The devil confines people within faith and leads them to destruction using all sorts of spiritual problems. शैतान लोगों के भाग्य को बताकर उनको ऐसे गुमराह कर देता है कि उनको आत्मिक समस्याओं में डाल देता है। Spiritual problems are manifested as crime, illnesses, addictions, powerlessness, mental disorders, and आत्मिक family problems. आत्मिक समस्याएं
को हम इस प्रकार से देखते हैं कि आज कई लोग नाना प्रकार की समस्याओं में पड़े हुए हैं, जिसमें पारिवारिक समस्या है, मानसिक तनाव है और दिवालियापन है, बहुत प्रकार की समस्या लोगों के जीवन में है। ये आत्मिक समस्याएँ हैं। and are very frightening. ये Uh, हमको बड़े डरावना-सा लगता है, yeah, we can only come out of this through Jesus Christ. लेकिन हम इन तमाम बातों से केवल यीशु मसीह के द्वारा ही बाहर निकल सकते हैं। 1 John 3, verse 2 says, that those who believe and accept Jesus Christ are children of God. पहला यूहन्ना 2 का 3 कहता है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उसकी संतान कहलाते हैं। The Holy Spirit indwells in and guides the children of God. पवित्र आत्मा उनमें वास करता है और परमेश्वर के बच्चों का मार्गदर्शन करता है। For example, Acts chapter 8, verses 4 to 8 says, उदाहरण के लिए प्रेरितों का काम 8 अध्याय 4 से 8 yeah, when Philip went to the city of Samaria and began to proclaim Jesus Christ to the people. जब फिलिप सामरिया नामक जगह पर गया और लोगों को प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, Every spirits were cast out, दुष्ट आत्मा बाहर निकाल दी जाती है and people who were sick were made well again. और जो लोग बीमार थे, वो ठीक हो जाते हैं। Therefore, there was great joy in the city. और फिर शहर में इसके परिणाम स्वरूप बड़ा आनंद आ जाता है। Likewise, you can meet God through Jesus Christ in your fears. इसी प्रकार से आप और मैं अपने सिपाही क्षेत्रों में भी इसी तरह से यीशु मसीह से मिल सकते हैं। Yeah. In Jesus' name, you can defeat the Satan's power in every step you take. जिस जैसे भी कदम हम जीवन के लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम इन दुष्ट आत्माओं को या अनेक प्रकार के कार्यों को दूर कर सकते हैं। And in the name of Jesus Christ, you can change your city like Philip. और यीशु मसीह के नाम में जिस प्रकार फिलिप ने शहर को बदला, हम भी अपने शहर को बदल सकते हैं। You have authority to break down the forces of darkness in Jesus' name. हमारे पास यीशु मसीह के नाम में अधिकार है कि हम अंधकार की शक्तियों को तोड़ सकते हैं, बांध सकते हैं। You can command against every spirit, be depart from us and be bound in Jesus' name. आपको अधिकार दिया गया है कि यीशु के नाम में ये आज्ञा दें या घोषणा करें कि हे दुष्ट आत्मा, तू हमसे बाहर हो जा। And the evil spirits will be cast out. तो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। Yeah. All right. Second, how can we meet दूसरा, God? We can कैसे meet God परमेश्वर through the Holy Spirit in Jesus' name, in Jesus आमीन, Christ. Yeah. आमीन। दूसरा पहला हमने देखा कि कैसे हम परमेश्वर से मिलें, तो पहला था कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। अब दूसरी बात हम देख रहे हैं कि परमय प परमेश्वर की पवित्र आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। Now, where is Jesus Christ? अभी यीशु मसीह कहाँ है? Yeah. He is in the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा में है And also Father God uh, is in the Holy Spirit. और पिता परमेश्वर भी पवित्र आत्मा में है। So through the Holy Spirit, we can meet God and Jesus Christ. इसलिए हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु और परमेश्वर को मिल सकते हैं।
We call that the Trinity. और इसे हम त्रिएकता कहते हैं। Yeah, Jesus promised that he would send the counselor, the helper, the Holy Spirit during his earthly ministry. और जब यीशु मसीह दुनिया में थे तो उन्होंने कहा था, प्रतिज्ञा दी थी कि वो पवित्र आत्मा को हमारे सहायक के रूप में भेजेंगे। And John chapter 16, verse 13 says, he said that when the Holy Spirit comes, he will lead us into all truth यूहन्ना 6:13 कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसने कहा था कि वो हमें हर एक सच्चाई के मार्ग पर लेकर चलेगा and teach us of the things to come in the future. और उन भविष्य की बातों को भी बताएगा। The Holy Spirit teaches all things. पवित्र आत्मा हमें हर बात को सिखाता है। Uh, John 14, verse 26 says, the Holy Spirit teaches all things and he helps us to remember the words of Jesus. और यूहन्ना 14:36 बताता है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के वचन को याद रखने में मदद करता है। So anytime we can ask to the Holy Spirit in our situations and problems. इसीलिए हमारे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी क्षण हम पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं। You can ask Jesus Christ to give you the wisdom. आप यीशु मसीह इसके द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह को कह सकते हैं कि आपको बुद्धि दे। Yeah, sometimes I'm experiencing the wisdom from the Holy Spirit in our lives. कई बार मैं अपने जीवन में पवित्र आत्मा की बुद्धि का अनुभव करता हूँ। So there is no problem in Christ. इसीलिए मसीह में कोई समस्या नहीं है। Anything is anything can be the true blessing and true answer in our lives. और सच्ची आशीषें और सच्चे उत्तर हमारे जीवन में कुछ भी हो सकते हैं। So we are receiving the answer from God through every problem. और हम अपनी हर एक समस्या के द्वारा परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त करते हैं। That is why when you encounter the problems, uh, don't be discouraged. Don't worry. इसीलिए जब भी हमारे जीवन में समस्याओं का सामना होता है तो निराश मत हो। Instead, please be happy because God will give you true answer through that problem. इसके बजाय खुश हो जाइए क्योंकि उस समस्या के द्वारा परमेश्वर आपको उत्तर देगा। Now let us look at the answer, not problem. आओ हम समस्याओं को न देखकर उत्तर को देखें। Yeah, God is giving us always answer. परमेश्वर हमेशा हमको उत्तर देते हैं। First Corinthians chapter 2, verses 10 to 14 says, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 आयत से लेकर 14 आयत तक ऐसा बताता है। we have not received the spirit of the world, but the spirit of God, the Holy Spirit. हमारे पास दुनिया की नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा है। Yeah, the Holy Spirit are making us making us known the will of God in our lives and the grace God give us. परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने हमें परिचित कराता है और अ, वो हमारे विनतियों को परमेश्वर के सम्मुख रखता है।
Acts chapter 1 verse 8 says, following the resurrection, Jesus said this about the Holy Spirit, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you'll be एक my का witnesses. एक का प्रेरितों के काम में पवित्र परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम मेरे गवाह होंगे। Yeah, the promise was fulfilled in Acts chapter 2, verse 1 to 13. और उसकी प्रतिज्ञाएं 1 का 1 से 13 में पूरी होती हैं। Though the disciples who were holding on to the promise of the Lord were gathered in one place. शिष्य थे जो उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करते थे, वो सब के सब एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए। According to the promise of the Pentecost, the Holy Spirit came upon them. परमेश्वर के वचन के आधार पर पेंतिकुस के दिन प्रतिज्ञा कहे के अनुसार उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया। The people were the people were filled by the Holy Spirit और फिर लोग पवित्र आत्मा को देखकर डरने लग गए। and spoke in tongues as the और Spirit permitted them. वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलने लग गए। At the time, the Jewish people from all different places were able to hear the message in their own language. और इतना ही नहीं, इधर-उधर से आए हुए यहूदी लोग अपने ही भाषा में अपने संदेश को सुनने लग गए। And they were startled. और वो कहने लग गए। That is why Peter tells them that the promise of the death and the resurrection of Jesus' ascension and coming of the Holy Spirit has been fulfilled. इसीलिए प्रेरित पौलुस समझाने की कोशिश लोगों को करता है कि मसीह का दुख उठाना, पीड़ा सहना, उनका मारा जाना, गाड़ा जाना, मुर्दों में से जी उठना, स्वर्ग पर चले जाना, ये सब बातें पूरी हो चुकी हैं। And those who were gathered, he heard the sermon of Peter and were struck to the core. और जो लोग वहाँ इकट्ठा हो रखे थे, उन्होंने पतरस के संदेश को सुना और चित्त लगाकर उनकी सुनी। They repented and were baptized in the और name of तब Jesus Christ. जब उन्होंने वचन को मन लगाकर सुना, तो पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया And were forgiven of their sins. और फिर परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया। And they then received the gift of the Holy Spirit. और फिर उन्होंने पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त किया। According to the apostles' teaching, they had fellowship together प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार उनकी आपस में संगति हुआ करती थी and broke bread and devoted themselves to prayer. वो दिन प्रतिदिन रोटी तोड़ा करते थे और अपने आप को उन्होंने परमेश्वर की भक्ति के लिए अलग कर दिया Also, through the apostles, many signs and miracles were revealed. और इतने ही नहीं प्रेरितों के द्वारा बड़े ही अद्भुत आश्चर्यचकित कार्य होने लग गए So Peter and John were on their way to the temple and they saw a crippled man who was crippled from birth to birth for 40 years. पतरस यूहन्ना जब प्रार्थना के समय जा रहे थे तो एक व्यक्ति को देखते हैं जो अम, लंगड़ा था करीबन 40 साल से चल फिर नहीं सकता था In Acts chapter 3, him, they raised him in the name of Jesus Christ. और जब हम प्रेरितों का काम 3 अध्याय अ, को पढ़ते हैं तो उन्होंने यीशु मसीह के नाम में उसको ठीक कर दिया So these people were amazed at yet again. और फिर से ये लोग आश्चर्यचकित हो गए
They gathered at Solomon's colonnade to hear Peter's sermon. और फिर जो अ, सोलोमन का चौराहा बनाया था, वहाँ पर वो लोग इकट्ठे होकर पतरस के संदेश को सुनने लग गए। Many people came to believe through the apostles' teaching, and the number of just the men who believed were 5,000. पतरस के संदेश को सुनने के बाद बहुत लोगों ने विश्वास किया और पुरुषों की संख्या 5,000 थी। Uh, in Matthew chapter 28, verses 18 to 20, मत्ती रचित अ, सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, before Jesus ascended, he gave his disciples an important command. 28 अध्याय में स्वर्ग जाने से पहले 18 से 20 में यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले एक महत्वपूर्ण आज्ञा अपने चेलों को देते हैं। He said, "Go and make disciples of all nations, उसने कहा जाओ और सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ baptizing them in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उनको बपतिस्मा दो teaching them to obey everything I have commanded you." और उन्हें वो सब कुछ सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। He then gave them this promise. और उसने तब उनको ये प्रतिज्ञा थी, Behold, I'll be with you to the very end of the age. देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे संग हूँगा। According to the Lord's promise, He sent the Holy Spirit, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के आधार पर वो पवित्र आत्मा को भेजता है and He is be with us even now. और वो आज भी हमारे साथ है। आमीन। Even now, Jesus is knocking on the door of our hearts. अभी भी यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। हालेलुया। Yeah. Revelations 3, verses 22, 21. प्रकाशित वाक्य 3 का 20 और 21। Jesus said, "Here I am. यीशु ने कहा मैं यहाँ हूँ, I stand at the door and knock. मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है, तो मैं भीतर आकर उसके संग भोजन करूंगा और वो मेरे संग and they with me." और वो मेरे संग। Yeah. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, और जो विजयी जीवन जिएगा, मैं उसको उस विजय के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठने का अधिकार दूंगा। just as I was victorious and sat down with my Father in his throne. जिस प्रकार से मैं एक विजयी जीवन जिया और मैं आज अपने पिता के सिंहासन के पास बैठा हूँ। Are you sure you will sit with Jesus Christ क्या on हम सभी Jesus' throne? सुनिश्चित हैं कि हम उसके सिंहासन के साथ सामने मतलब सिंहासन के पास बैठेंगे? Yeah, we were much blessed. हमको विश्वास करना है। Yeah. So let us meet God through the Holy Spirit in Christ Jesus. आइए पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह में होकर हम परमेश्वर से मिलें Please enjoy the meeting. और उस सभा का आनंद लीजिए। Anytime you can enjoy the meeting with the Holy Spirit through prayer. प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा के माध्यम से कभी भी आप इस सभा का आनंद ले सकते हैं And also you can enjoy the blessing in the field of evangelism. और साथ ही साथ आप एक सुसमाचार
होने के नाते इसका आशीष को भी प्राप्त कर सकते हैं। Yeah, the Holy Spirit is working in every step you take. पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन के हर एक कदम में काम करता है। Yeah, let us feel Him with us. आइए हम उसका अनुभव अपने जीवन में करें। Please give your ear to Him and listen to the whispers of Him. कृपया अपने कान उसकी ओर दें और उसकी फुसफुसाहट को सुनें। He is consoling us and He is giving the answer to our problems. वो हमें सांत्वना देता है और हमारी समस्याओं का उत्तर देता है। Yeah, 24/7 we can listen to the voice of the Holy Spirit. चौबीसों घंटे हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, Yeah, because we are God's children. क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं And also you are His servants for worthy missions. और साथ ही साथ आप उसके सेवकाई में सहयोगी हैं। All right, let's move on to number 3. We can meet God through the church that the Holy Spirit works upon. और तीसरी बात, हम परमेश्वर से कलीसिया जिसमें पवित्र आत्मा काम करता है, उसके द्वारा भी परमेश्वर को मिल सकते हैं। The Holy Spirit works accurately through the church. पवित्र आत्मा सही तरीके से कलीसिया के द्वारा कार्य करता है। There are enormous blessings hidden within the church. कलीसिया में बहुत सी आशीषें छुपी हुई हैं। Although it may seem as if the church possesses nothing, हाँ, कई बार हमको ये केवल एक चर्च ही दिखेगा, लेकिन ये इतना ही काफ़ी नहीं है and is lacking in every way, और न ही किसी चीज़ की कमी किसी क्षेत्र में है। it holds the very interest of the creator law. हाँ, हमारा जो रचयिता है, उसकी जो व्यवस्था है, वो इसमें रुचि रखता है। It is not the building, ये एक बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, but the fact that those with salvation who confess that Jesus is the Christ gather together as one. लेकिन ये इस बात को बताता है कि जिन्होंने यीशु को ये कहा है कि यीशु ही मसीह है, उस पर विश्वास किया है और एक साथ उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं। The church is a formed unity that is established through the working of the Holy Spirit. कलीसिया में जो एकता का काम होता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है And it serves as the body of Christ, with Christ as the head. और वो मसीह कलीसिया का सर होने के जैसे कार्य करता है। Jesus Christ, who is the head of the church, यीशु मसीह कलीसिया का सर है he works within the congregation through the Holy Spirit to save the world. लोगों के जीवन में कलीसिया के द्वारा कार्य करता है। In Acts chapter 2, verses 42 to 47, you can see the state of the lay people in the early church. प्रेरितों का काम 2 का 42 से 47 तक हम प्राचीन कलीसिया के एक तरीके को देखते हैं। They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, उन्होंने अपने आप को शिक्षा के लिए दे दिया and the breaking of bread and to prayer. और
प्रार्थना और संगति के लिए और रोटी तोड़ने के लिए। There were many trials and persecutions that arose because of the apostles. हाँ, हमने ये भी देखा कि प्रेरितों के कारण वहाँ बहुत सी विरोध, सताव, समस्या भी हुई। The lay people shared all their belongings, selling their personal possessions for the benefit of others. जो विश्वासी लोग थे, उन्होंने अपनी संपत्ति, अपना जो कुछ था, उन्होंने अन्य लोगों के साथ उसको साझा किया And gathered together in prayer within the temple. तो एक साथ दुआ प्रार्थना करते थे। The Lord further leading his saved people should be the genuine state of the church. और फिर परमेश्वर अपने लोगों को अपने हाँ, परमेश्वर अपने कार्यों के लिए उनको तैयार करता था। Yeah. Those who witness a church, the overflows with the love and the power of God, begin to accept him. और जिन लोगों ने कलीसिया की गवाही दी, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम और कार्य प्रकट होता था। At the time, the church must correctly serve as an ark for those who possess salvation. और उस समय कलीसिया इस तरीके से वाचा के संदूक के तरह कार्य करती थी, जिन लोगों का उद्धार हो गया था। Even today, numerous people are receiving life through the gospel from the established life unity. बहुत से लोगों के जीवन में उद्धार का अनुभव होने के बाद एकता का प्रतीक भी हमने देखा। And gospel unity churches scattered across the world. और जिन जगह हमने एकता को सुसमाचार के लिए देखा, वो लोग दुनिया के चारों ओर तितर-बितर हो गए। Similar to the lay people of the early church, we must enjoy the blessings of worship with our fellow brother of faith within the regional and fair churches. इसी प्रकार हमें भी चाहिए कि जो हमारे रीजन हो, हमारे स्थानीय हो, आस-पड़ोस हो, जो भी कलीसियाएँ हैं, उनके साथ हमें भी एकजुट होकर रहकर परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना है। However, there are a number of corrupt individuals within the church that use people rather than help the church for the that have not been saved. हाँ, आपको और मुझे ये बात भी याद रखनी है कि कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि दुष्टता के कार्य को करते हैं, जिनके कारण कलीसिया में जो उनको प्राप्त करना चाहिए था, वो नहीं प्राप्त हुआ। And they that have they yearn for money, focused on positions, fallen into the depths of lust. But we ये must use them. वो उनका जीवन का उद्देश्य पैसा, लोभ, लालच ये हो गया जिसके कारण उन्होंने मृत्यु का स्वाद चखा। ऐसे लोगों को हमें सिखाना है और सचेत करना है। The gospel can save them all. सुसमाचार उन्हें बचा सकता है और Therefore, professing the correct gospel and using your power to save the lives of others is the lifestyle of God's word. दूसरों को बचाना, एक सुसमाचार का जीवन जीना, यही एक सुसमाचार का उद्देश्य है। If you are a sincere layperson or pastor who has received salvation, then you must serve the church and be joyful in the committing to missions. अगर आप एक ईमानदार पासवान हैं और परमेश्वर की कलीसिया की सेवा कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को मिशन के लिए समर्पित कर देना है। Especially among the pastors who have received the salvation and the church members, there are undoubtedly faithful leaders.
और फिर ये कार्य हमें आगे बढ़कर अगुओं को भी ऐसा ही करना है। You know, in your church, faithful lay people and leaders are joyful to receive the word. आपके कलीसिया में जो लोग आनंद के साथ सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, उनको लीडरशिप में आगे लाना है। And they live their lives for the very sake of sharing the gospel. और फिर वो अपना जीवन सुसमाचार को लोगों को बताने के लिए जीते हैं। Thus, if you incorrectly learn how to live your walk of faith, you'll face hardships concerning the services to the church. अगर आप इस बात को समझ गए कि कैसे संतुष्टता के साथ आपको अपना जीवन कलीसिया के प्रति जीना है, The first step is to have the great experience in tasting the gospel. तो सबसे पहला बात आपको अपने जीवन में ये करना है कि आपको सुसमाचार के स्वाद का अनुभव होना है। When we gather around the essence of Christ, in the awe of the grace of salvation, and enjoy the mystery of prayer, जहाँ हम मसीह के उपस्थिति का अनुभव करते हैं और प्रार्थना में आनंद मनाते हैं, then we will receive the filling of the Holy Spirit तो and gain the power of the Holy Spirit as well. तब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा के अनुभव को अपने जीवन में जिएंगे। At the moment, the evidence that God is with you will surely arise through your life. और फिर आपके जीवन में जब आप इस प्रकार से जीवन को जिएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। Then naturally you can enjoy a lifestyle that commits to the services and missions of the church. फिर आप अपने जीवन में एक आनंदमय जीवन को जी सकते हैं कलीसिया के विभिन्न कार्यों के द्वारा। As a result, others will witness the lifestyle of Christians इसका परिणाम ये होगा कि अन्य लोग मसीहों के जीवन के को देखेंगे and will desire to accept Jesus Christ और फिर उनकी इच्छा होगी कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसे माने and begin to compliment और फिर अ, उसकी सराहना करने लगेंगे and genuinely respect the church. और फिर कलीसिया में भाग लेने लगेंगे And those associated with the church as well. और यही तो लोग हैं जो कलीसिया के साथ अपना सहयोग रखते हैं। All right, I want to wrap up this message with the conclusion. निष्कर्ष के साथ इस संदेश को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। We can meet God through Jesus Christ and the Holy Spirit and the church. यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और कलीसिया के द्वारा हम परमेश्वर को मिल सकते हैं। Yeah, so as a pastors, we must stress these three things to our members. पासवान होने के नाते ये तीन बातें हमें अपने सदस्यों को भी बतानी है। Let us make known Jesus Christ to them. आइए हम यीशु मसीह को दूसरों को बताएं। Who is Jesus Christ? जो कौन है? Yeah, please ask to your members like that. अपने लोगों से पूछिए कि यीशु मसीह कौन है? Yeah, Jesus is the Christ, the Son of the living God. वो मसीह है जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। Yeah, He saved us from sin and death and the power of Satan. उसने हमें पाप, मृत्यु, शैतान से बचाया है।
Jesus is the Christ. The Christ means an anointed one. यीशु मसीह है। मसीहा का मतलब होता है अभिषेक। Yeah, Jesus is true King who crushed the devils of work. वो एक सच्चा राजा है जिसने शैतान के कार्य को नाश कर दिया। Yeah, he is ruling over us now with his kingship. और अब वो अपने राजापन के द्वारा हमारे जीवन में राज कर Yeah, he is राज ruling over our churches and the families of our members. हमारी कलीसिया, परिवार, सदस्यों के जीवन में वो राज कर रहा है। Yeah, everything is in God's control. सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। Yeah. Oh, we are God's children, the prince of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसके राजकुमार हैं। So we can defeat the force of darkness in Jesus Christ's name. इसीलिए यीशु मसीह के नाम में अंधकार की ताकतों को हम हरा सकते हैं। Let's enjoy this status and authority. और इस अधिकार का हम अपने जीवन में आनंद लें। Yeah, please uh, tell your members, please use this authority in your lives. अपने सदस्यों को बताएं कि इस अधिकार का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। Yeah, in Jesus' name, bind the force of darkness in your life. यीशु के नाम में इन तमाम अंधकार की शक्तियों को बांध दीजिए अपने जीवन में। And also, Jesus is true priest. और इतना ही नहीं, यीशु मसीह सच्चा पुरोहित भी है, याजक है। Yeah, as a priest, he became the Lamb of God for us. याजक होने के द्वारा या नाते वो हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बन गया। He was crucified on the cross for our sins. हमारे पापों के लिए वो सलीब पर बलिदान हो गया। Through his blood, we were saved, खून damaged के him. द्वारा हम बच गए। Yeah. So we were set free from the power of sin. और पाप के बंधन से हम बच गए। And now let us fight against our sinful nature, the wish of sin in our lives. आइए अब हम अपने पाप में स्वभाव के विरुद्ध में युद्ध करें। We are wrestling against the flesh always. हम शरीर के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं। How can we defeat against them? अब हम उसको कैसे हरा सकते हैं? Yeah, through the blood of Jesus Christ. प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। Yeah, when God covered us with the blood of Jesus Christ, we can have victorious against the sin. जब परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा हमें ढाप देता है, तो हम पाप के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Yeah, please help your members to have victory against the power of sin in their lives. या अपने कलीसिया के सदस्यों की मदद कीजिए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए कि किस प्रकार से यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो अपने जीवन में अपने पापों की मतलब एक तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। How can we solve our sin? अपने पापों का कैसे समाधान करें? Only through Jesus' redemption. केवल यीशु के छुटकारे के द्वारा। Yeah, we are
we have the priesthood in our lives. We are royal priest. हम हमारे जीवन में याजकीयपन है, हम महायाजक हैं। So we can defeat the power of sin in our lives. तो पाप के अधिकार को हम अपने जीवन में हरा सकते हैं। Yeah, with the blood of Jesus Christ, let us come near to our King God. यीशु मसीह के लहू के द्वारा आइए हम अपने राजा परमेश्वर के करीब आए। In addition, we are addition in Jesus is the true prophet. इसके साथ-साथ यीशु मसीह एक सच्चा भविष्यवक्ता भी है। Yeah, he came down for us with the gospel of heaven. देखिए, वो स्वर्ग से सुसमाचार को लेकर हमारे जीवन में धरती पर आया। Yeah, he proclaimed in the beginning, uh, repent, uh, for the kingdom of God is near. उसने कहा, पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। Yeah, the kingdom of God is Jesus ruling. और अ, परमेश्वर के राज्य में ही तो यीशु मसीह शासन कर रहा है। Jesus is the true king in his kingdom. यीशु मसीह उसके राज्य में एक सच्चा राजा है। Jesus proclaimed the gospel of heaven and uh, and taught the word of God in यीशु every synagogues. यीशु ने स्वर्ग राज्य के संदेश को, परमेश्वर के वचन को हर एक अ, आराधनालय में बताया। Yeah, we can enter into the heaven through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। Yeah, He's the way to meet God. क्योंकि वही तो परमेश्वर से मिलने का रास्ता है। Now, how can your family and neighbors can meet God? अब सवाल ये उठता है कि आपके परिवार या मेरा परिवार, हमारे आस पड़ोस के लोग कैसे परमेश्वर से मिल सकते हैं? Yeah, through you, they can meet God. हमारे द्वारा वो परमेश्वर से मिल सकते हैं। You must become the way to meet God through them. चक्रधर जी हैं जिनके द्वारा लोग परमेश्वर से मिल सकते हैं। Like Jesus Christ, let us proclaim the gospel of heaven to them. और फिर हम उनको स्वर्ग राज्य का सुसमाचार बता सकते हैं। Yeah, we have prophethood in our lives. हमारे जीवन में एक याजकपन दिया गया है। Yeah, we must become speaker of the gospel to them. और हमें लोगों को सुसमाचार का वक्ता बनना है। So let us raise the speak of the gospel in our churches. आइए हम अपनी कलीसियाओं में सुसमाचार के वक्ता बन जाएं। A long time ago, I have watched one interesting movie named Postman. पोस्टमैन Yeah, Postman. तो कह रहे हैं कि कई समय पहले की बात है, उन्होंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था पोस्टमैन। Because of war, uh, all people cannot communicate it one another. और अ, उन दिनों में जानते थे कि सभी लोग एक दूसरे से संचार नहीं कर पाते थे। All systems were collapsed because of war. और युद्ध के कारण सारा जो सिस्टम था वो सब खराब हो गया था। At the time, one postman started to uh, bring the post to people. और उस समय डाकिया जी जो थे, वो लोगों को खत लेकर लोगों के यहाँ खत लेकर आने लग गए।
only through him they can communicate to one another at that time. और उसी के द्वारा वो एक दूसरे से संचार किया करते थे। But there's only one postman. That is problem. There was problem. और क्योंकि समस्या वहाँ ये हो गई थी क्योंकि वहाँ एक ही पोस्टमैन था। So uh, uh, he realized, ah, there is we need another postman, फिर उसको ऐसा महसूस हुआ यार हमें और भी पोस्टमैन चाहिए। हालेलुया! and he, and he made many disciples. और फिर उसने बहुत से चेले बना दिए। As a result, so many postmen rose. और फिर बहुत सारे पोस्टमैन तैयार हो गए। Yeah, because of them, because that all peoples can communicate always one another. और फिर उनके द्वारा सारे लोग कभी भी संचार कर सकते थे। Yeah, likewise, let us make another postman in our lives. हालेलुया! आइए हम भी इसी तरीके से अपने जीवन में भी पोस्टमैनों को तैयार करें। They can bring the letter of heaven to the कि peoples. वो स्वर्ग का पत्र लेकर लोगों के पास जा सकें। थॉमस जी सही बात है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। Uh, in your church, जी, please. praise the Lord. Yeah, in your church, God will raise so many postmen of the gospel message. प्रेज़ द लॉर्ड। और उनकी दुआ है कि हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर बहुत से सुसमाचार के पोस्टमैनों को तैयार करेगा। All right, let's pray. दुआ करें। Our loving God, thank you for giving us very important message. हमारे प्रेमी प्रभु, धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। We want to always meet you. प्रभु हम हर समय आपसे मिलना चाहते हैं। You gave us Jesus Christ and the आपने Holy Spirit and the church to meet आपने God. हमें यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और कलीसिया दी है, ताकि हम आपसे मिल सकें। Thank you for your blessing. आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद। Please let us enjoy these blessings in our lives. प्रभु मदद कर कि हम इन आशीषों को अपने जीवन में आनंद उठा सकें। 24/7, we want to meet you 24 घंटे हम आपको मिलना चाहते हैं and gain through spiritual power ताकि हम आत्मिक सामर्थ को प्राप्त कर सकें and become your witnesses. और फिर आपके गवाह बन सकें। Please bless our pastors and their church. प्रभु हमारे पासवानों को, उनकी कलीसियाओं को आशीष दीजिए। Lord, please send true disciples. प्रभु चेलों को भेजिए। Please help them to raise the gospel postman, so many. प्रभु मदद कर कि वो बहुत से सुसमाचार के पोस्टमैनों को तैयार कर सकें So that they can bring the gospel message to their peoples. ताकि वो अपने लोगों को सुसमाचार का संदेश पहुंचा सकें। We praise you. In Jesus' name we pray. हम आपकी स्तुति करते हैं और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen. 감사합니다। Thank you. Let's take a break. ठीक है, तो अभी ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद All हम right. All right. See you soon. 감사합니다, 목사님. Thank you so much. एक बात गाना सुन लेंगे। कौन प्रभु की महिमा के लिए गाएगा? संजय जी हैं कि चक्रधर जी हैं? Yes, yes. Praise the Lord. चलिए फिर अब डाकिया तो आप ही को बनना है हमारा। Yes, yes, yes. Amen. ठीक है। ओके, गुड।